તો આજનો દિવસ જમ્મુ કાશ્મીર માટે મહત્વનો, કારણ કે સુપ્રીમ કોર્ટમાં જમ્મુ કાશ્મીરમાં લાગુ થતી 370 ને કલમને હટાવવાના કેન્દ્રના નિર્ણયની બંધારણીય માન્યતા પર પોતાનો ચુકાદો આપવા માટે હાલમાં સુનાવણીની શરૂઆત થઈ ચૂકી છે। સીજેઆઈ ચંદ્રચૂડની અધ્યક્ષતામાં 5 જજની બેન્ચ હાલમાં સુનાવણી કરી રહી છે। નિર્ણયનો વિરોધ કરી રહેલા કેટલાક અરજદારોની દલીલ છે કે 1957 પછી વિધાનસભાની મંજૂરી વિના કલમ 370 હટાવી શકાય નહીં, પરંતુ કેન્દ્ર સરકારે 370 હટાવી લેવા માટે જે અધિનિયમ પાસ કર્યો છે તેના વિરુદ્ધમાં હાલમાં જે અરજી કરવામાં આવી છે તેમાં હાલમાં સુનાવણી થઈ રહી છે। જમ્મુના સ્થાનિક ગ્રુપને તરફેણમાં ચુકાદાની આશા છે, તો સાથે જ કેન્દ્ર સરકારે દલીલ કરી છે કે આ મામલે કોઈ બંધારણીય ગેરરીતિ થઈ જ નથી। ભારતીય જનતા પાર્ટીએ એમ પણ કહ્યું છે કે આ મુદ્દે રાજનીતિ ન થવી જોઈએ। તો એક તરફ ક્યાંક આક્ષેપ પ્રત્યે આક્ષેપોનો દોર અને બીજી તરફ જમ્મુ કાશ્મીરમાં સુરક્ષા વ્યવસ્થા પણ સતર્ક કરવામાં આવી છે, કારણ કે જે પણ સુનાવણીના અંતે ચુકાદો આવશે તેની સીધી અસર જમ્મુ કાશ્મીર પર પડશે। 5 જજોની બેન્ચ કરી રહી છે સુનાવણી। 5 ઓગસ્ટ 2019ના રોજ સંસદમાં પસાર કરવામાં આવેલ નિર્ણયની આખરે બંધારણીય માન્યતા શું છે તે સુપ્રીમ કોર્ટ આજે સ્પષ્ટ કરી રહ્યું છે। ચીફ જસ્ટિસ ડીવાય ચંદ્રચૂડની આગેવાની હેઠળની 5 જજીસની બંધારણીય બેન્ચ આ મામલે પોતાનો મહત્વપૂર્ણ ચુકાદો આપશે, જેની સુનાવણી શરૂ થઈ ચૂકી છે। કલમ 370 હટાવવાની બંધારણીય માન્યતાને લઈને સુપ્રીમ કોર્ટમાં ચાલેલી 16 દિવસની સુનાવણી બાદ 2 ઓગસ્ટે દલીલો પૂર્ણ થઈ ગઈ હતી અને કોર્ટે પોતાનો ચુકાદો સુરક્ષિત રાખ્યો હતો। આજે સુપ્રીમ કોર્ટ પોતાનો ચુકાદો આપવા જઈ રહી છે। ચુકાદા સાથે સ્પષ્ટ થશે કે કેન્દ્ર સરકારનો કલમ 370 હટાવવાનો નિર્ણય બંધારણીય દ્રષ્ટિએ યોગ્ય છે કે નહીં, એટલે કે તેને યથાવત રાખવામાં આવે છે કે તે નિર્ણય પરત લેવા માટે કેન્દ્ર સરકારને આદેશ કરવામાં આવે છે, તે ચુકાદા બાદ ખ્યાલ આવશે। હાલમાં સુનાવણી શરૂ થઈ ચૂકી છે। તો સંસદે કઈ રીતે કલમ 370 નાબૂદ કરી હતી તેને અમને સમજાવી રહ્યા છીએ। કેન્દ્ર સરકારે બંધારણ સભા વતી કલમ 370 જે છે તે હટાવી દીધી હતી અને સૌથી મહત્વના સમાચાર અત્યારે આવી રહ્યા છે। સંવિધાન પીઠના 3 જજનો ફેસલો જે હતો એક સરખો છે, સાથે સીજેઆઈ ચંદ્રચૂડની અધ્યક્ષતામાં 5 જજીસની બેન્ચ જે છે એ હાલમાં સુનાવણી કરી રહી છે। अजय हमारे साथ जुड़ाई गया है। अजय, सुनवाई शुरू हो चुकी है, क्या आज जो आदेश है सुप्रीम कोर्ट अपना आदेश दे सकती है कि दूसरी कोई तारीख देख सकती है? क्या जानकारी प्राप्त हो रही है इस मामले में? देखिए, पहले सुप्रीम कोर्ट से जो शुरुआती इंफॉर्मेशन है उसके बारे में बताता हूँ कि 3 तक के जजमेंट यानी 5 जो बेंच है 3 तरह के जजमेंट आए हैं और मेजोरिटी का जो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है उनकी तरफ से पढ़ा जा रहा है। और खास करके जब 16 दिनों तक सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दोनों पक्षों से ये सवाल पूछा गया था कि जो 370 हटाया गया और खास करके 35A हटाई गई है उसका वैलिड रीजन क्या है। और खास करके केंद्र सरकार से ये पूछा गया था कि संविधान सभा की क्या इस 370 को या 35 को हटाने में अनुमति थी या नहीं थी, और खास करके इसकी सिफारिश किसने की थी। जबकि जो विपक्षी है यानी कि जिनकी तरफ जो जम्मू कश्मीर के अधिकतर लीडर है जिनकी तरफ से 370 हटाने का विरोध किया गया था, उनसे सवाल ये पूछा गया था कि 1857 में जब संविधान सभा डिजॉल्व हो गई थी तो ऐसे में 370 कायम कैसे रह सकता है, इसका आर्गुमेंट बताइए। ये तमाम सारे आर्गुमेंट हुए थे, 16 दिनों तक चले थे। इस बीच सेंट्रल गवर्नमेंट ने जरूर ये कहा था कि 370 और 35A जो हटाई गई है उसमें जम्मू कश्मीर की जो असेंबली है उसको परमानेंट डिजॉल्व नहीं किया गया है बल्कि अस्थायी तौर पर डिजॉल्व किया गया है और हम किसी भी वक्त उसको बहाल कर सकते हैं। और साथ ही साथ 370 हटने के बाद किस तरह का वहां पे डेवलपमेंट हुआ था ये तमाम सारी दलीलें केंद्र सरकार की तरफ से दी गई थी। लेकिन अब पूरे देश भर की नजरें और खासकर के जम्मू कश्मीर की नजरें ये टिकी हुई है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस पे क्या फैसला आता है। जबकि सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है अभी मेजोरिटी का जो जजमेंट है उसको पढ़ रहे हैं और खास करके 3 तरह के जजमेंट आए हैं, यानी 3 अलग अलग तरह के जजमेंट होंगे। तो देखना ये होगा कि थोड़ी देर बाद ही ये पता चल जाएगा कि किस तरह का जजमेंट आया हुआ है। जी बिल्कुल अजय, धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। जुड़े रहिएगा, ज्यादा अपडेट आपसे प्राप्त करते रहेंगे। तो सीजीआई चंद्रचूडनी जे बेंच है ते हालમાં 5 જજોની બેન્ચ સુનાવણી કરી રહી છે। ખાસ અરજદારોની દલીલો એ છે કે અહીંયા સત્તાનો દુરુપયોગ કરવામાં આવ્યો છે, એટલે કે બંધારણીય
કોઈ પણ બંધારણીય એવો અધિકાર નથી, કોઈ કલમ નથી કે જે 370 ને હટાવી શકે. હાલમાં ચુકાદો આવવાની શરૂઆત થઈ ચૂકી છે અને ખાસ અરજદારો એ પણ કહી રહ્યા છે કે બંધારણીય દુરુપયોગ કરવામાં આવ્યો, સત્તાનો દુરુપયોગ કરવામાં આવ્યો છે અને ખાસ કેન્દ્ર સરકાર એવી પણ દલીલ કરી છે કે બંધારણીય ગેરરીતિનો ઉપયોગ નથી કરવામાં આવ્યો. આમાં આખી વિધાનસભાને એકદમ ધ્વંસ કરવામાં નથી આવી, માત્ર પાર્શિયલી કરવામાં આવી છે એવી પણ દલીલ કરવામાં આવી હતી. 16 દિવસ સતત સુનાવણી ચાલી હતી ને ત્યારબાદ જે 2 ઓગસ્ટે આખી સુનાવણી પૂર્ણ થઈને ચુકાદો આજ પર અનામત રાખવામાં આવ્યો હતો. ત્યારે સંવિધાન પીઠના 3 જજોનો ફેસલો અહીંયા એક છે એવું સામે આવી રહ્યું છે. કલમ 370 અંગે સુપ્રીમ કોર્ટમાં ચુકાદો આવવાની શરૂઆત થઈ ચૂકી છે અને જે 3 જજો છે તેમનો ફેસલો જે છે એક સરખો જ છે, એટલે તેમનું એક જ સરખું માનવું છે. હવે આખરે શું ચુકાદો આવે છે તે જોવાનું રહેશે. હાલમાં થોડા સમયમાં જ ખ્યાલ આવી જશે કે 370 એ બંધારણમાં કાયમી જોગવાઈ બની ગઈ છે કે નહીં, કારણ કે 370 કલમ હટાવવામાં તો આવી હતી 2019માં, પરંતુ ત્યારબાદ અરજદારો દ્વારા તેનો વિરોધ પણ કરવામાં આવ્યો હતો અને જેના જ કારણે તેમણે કહ્યું છે કે સત્તાનો દુરુપયોગ કરીને આ પ્રકારે જમ્મુ કાશ્મીરમાંથી 370 કલમ જે છે તે હટાવવામાં આવી છે. જે સંસદ છે તેમાં આ આખો ઠરાવ પસાર કરવામાં આવ્યો, ત્યારબાદ જમ્મુ કાશ્મીરમાં જે છે તેને લાગુ કરવામાં આવ્યો હતો. ત્યારે ખાસ કરીને જે 5 જજોની બેન્ચ છે એવું કહી રહ્યા છે કે 4 કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશ આખરે ક્યાં સુધી અસ્તિત્વમાં રહી શકે. 5 બંધારણ સભાની સિવાય કલમ 370 હટાવવાની આખરે ભલામણ કોણ કરી શકે. अजय हमारे साथ ही जुड़ाई गया है. अजय, सुनवाई होने की शुरू हो गई है, यानी पढ़ना शुरू कर दिया है अपने आदेश को. इसके बारे में क्या ज्यादा अपडेट मिल रही है, क्योंकि 3 जज जो है उनका फैसला एक ही है, तो वो किसकी तरफ है, सरकार की ओर के अर्जदार की ओर? देखिए, अभी ये कहना काफ़ी मुश्किल है क्योंकि 3 तरह के जजमेंट आए हैं. ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तरफ से बताया गया है और खास करके जो मेजॉरिटी का जजमेंट है उसको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तरफ से पढ़ा जा रहा है. और अभी की लेटेस्ट अपडेट की अगर बात करें तो ये कहा गया है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो निर्णय लिया गया है, खास करके स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, उसे लीगली तौर पे फिलहाल चैलेंज नहीं किया जा सकता है और इट्स विल लीड टू चाओज. एक तरह से तमाम सारी अस्थिरता को क्रिएट करेगा. तो अभी एक शुरुआती तौर पे है, लेकिन टोटल रूप से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तरफ से क्या निर्णय लिया जाता है या क्या फैसला सुनाया जाता है, बस थोड़े वक्त का इंतजार करना पड़ेगा. लेकिन मेजॉरिटी का जजमेंट जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तरफ से पढ़ा जा रहा है, इसका साफ सा मतलब है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अभी जो फैसला सुनाएंगे वही एक तरह से अंतिम फैसला होगा. हो सकता है कि बाकी के जो 2 जजमेंट हैं, यानी जो न्यायाधीशों की तरफ से जो जजमेंट सुनाए जाएं, वो थोड़ा अलग हो सकते हैं. लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि जब 16 दिनों की सुनवाई चल रही थी तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तरफ से या जो 5 जजों की बेंच थी, दोनों पक्षों से कुछ तीखे सवाल पूछे गए थे. उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट से यह सवाल पूछा गया था कि संविधान सभा की क्या अनुमति लेना जरूरी है 370 को हटाने से पहले और 35 को हटाने से पहले या नहीं, और साथ ही साथ क्या किसी की सिफारिश के आधार पर इसको हटाया गया है. वहीं पर जो जम्मू कश्मीर के जो लीडर है जिन्होंने 370 हटाने को चैलेंज किया था, उनसे सीधे तौर पे सवाल किया था कि जब 1957 में जब संविधान सभा डिजॉल्व हो गई, यानी खत्म हो गई या उसको खत्म कर दिया गया, तब किस तरह से 370 अस्थायी हो सकता है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के जो लीडर हैं उनकी तरफ से यह कहा गया था कि 370 को हटाना गैर संवैधानिक है और उसे किसी भी सूरत में हटाया नहीं जा सकता है. तो फिलहाल दोनों के अपने अपने दावे हैं. इस बीच सेंट्रल गवर्नमेंट ने जरूर ये कहा है कि वो जो जम्मू कश्मीर की विधानसभा है उसको अस्थायी तौर पे डिजॉल्व किया गया है, न कि अस्थायी तौर पे डिजॉल्व किया गया है. सिचुएशन काफी अनुकूल हुई है और हम जल्द ही जम्मू कश्मीर की जो विधानसभा है उसको बहाल कर देंगे. लेकिन साथ ही साथ केंद्र सरकार की तरफ से यह भी कहा गया था कि 370 हटाने के बाद किस तरह से हालात वहां पे काफी बेहतर हुए हैं और स्थितियां काफी अनुकूल हुई हैं. वहां के लोग काफी सामान्य जिंदगी जी रहे हैं. कितने फिल्में, जो फिल्म हॉल है वो चालू हुए हैं, गतिविधियां किस तरह से चालू हुई, तमाम सारे
आर्गुमेंट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जम्मू कश्मीर की बेहतरी के बारे में सुप्रीम कोर्ट को बताया गया था। तो मेजॉरिटी का जजमेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तरफ से पढ़ा जा रहा है। देखना यह होगा कि मेजॉरिटी का जजमेंट क्या आता है। बाकी ये तय हो चुका है कि 3 तरह के जजमेंट है। जी बिल्कुल 3 तरह के जजमेंट है, लेकिन अगर कहा जाए तो जो अर्जदार है, जो 26 जितनी अर्जियां हुई है, उन्होंने याचिका दाखिल हुई है, उन्होंने ये भी कहा है कि इसमें राज्य सरकार की सहमति नहीं है और 370 कलम हटाने के साथ ही लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों को अलग अलग कर दिया था। तो क्या ये जो आदेश आएगा, जो निर्णय आएगा, उसका जो असर है वो इस निर्णय पे आ सकता है, लद्दाख और कश्मीर को अलग अलग करने के निर्णय पे? देखिए, ये देखने वाली बात होगी कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए हैं, ये क्या सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद दोनों एक हो सकते हैं या लद्दाख अलग केंद्र शासित प्रदेश रह सकता है और जम्मू कश्मीर की असेंबली बहाल हो सकती है। हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से पहले ही स्पष्ट कर दिया गया है कि जम्मू कश्मीर की असेंबली को हम बहाल करेंगे क्योंकि स्थितियां काफी अनुकूल हुई हैं। लेकिन ये सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से बताया नहीं गया है क्या लद्दाख और जम्मू कश्मीर तीनों को मिला के पहले जैसा जम्मू कश्मीर था वैसा ही बहाल किया जाएगा या जम्मू कश्मीर अलग होगा और लद्दाख अलग होगा। तो देखना यह होगा कि इसमें सुप्रीम कोर्ट का क्या निर्णय आता है। लेकिन निश्चित तौर पे जो जितने भी कश्मीरी लीडर हैं उनकी तरफ से यह कहा जाता था कि विधानसभा जब पहले ही डिजॉल्व है, राज्यपाल का वहां पे शासन लगा हुआ है या राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है, ऐसे में जब विधानसभा की अनुमति नहीं है तो किस तरह से 370 को जो बर्खास्त किया गया है केंद्र सरकार की तरफ से। लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से एक और सॉलिड तर्क दिया गया था कि जिस तरह से भारत के आजाद होने के बाद तमाम सारी जो रियासतें हैं उन रियासतों को भारत में विलय किया गया, उसी विलय के तहत जम्मू कश्मीर का भी विलय किया गया है। कहीं से भी कानूनी तौर पे न फ्रॉड हुआ है न इलीगल काम हुआ है, बल्कि सारा कुछ कानूनी तौर पे हुआ है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट पहले से ही स्पष्ट है कि जिस तरह से तमाम सारी रियासतें भारत में मिली हुई हैं, उसी प्रक्रिया के तहत जम्मू कश्मीर का भी विलय किया गया है। कहीं से भी कानूनी तौर पे अवैध चीज कोई नहीं हुई है। तो अब देखना यह होगा कि जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तमाम सारे निर्णय लिए गए हैं वो क्या कुछ होते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों से निश्चित तौर पे तीखे सवाल किए गए थे, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट से ये तीखा सवाल जरूर किया था कि जब संविधान सभा की अनुमति लेना जरूरी होता है या नहीं होता है, खास करके कलम 370 को हटाने से पहले। और साथ ही साथ ये भी कहा था कि किसकी सिफारिश पे आप लोगों ने 370 हटाने का फैसला किया, किसने सिफारिश की थी। लेकिन वहीं पर जो कश्मीरी लीडर हैं उनसे भी सवाल यही किया था कि 1957 में जब संविधान सभा डिजॉल्व हो गई थी यानी भंग हो गई थी, तो ऐसे में 370 कायम कैसे रह सकता है, इसके बारे में आप अपनी दलीलें रखिए। तो अपनी अपनी दलीलें सबकी तरफ से रखी जा चुकी हैं, निर्णय पढ़े जा रहे हैं। मेजॉरिटी का निर्णय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तरफ से पढ़ा जा रहा है। ये तय हो चुका है कि 3 तरह के जजमेंट आए हैं और मेजॉरिटी का जो जजमेंट है उसी को मान्य माना जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपनी मंशा स्पष्ट कर दी है कि किसी भी तरह का कोई कियोस नहीं होना चाहिए उनके फैसले से, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो फैसला दे दिया है, अगर उसमें किसी तरह का कियोस होता है तो निश्चित तौर पे जम्मू कश्मीर एक बार फिर अस्थिरता की तरफ बढ़ेगा, जैसा कि केंद्र सरकार की तरफ से दावा किया जा रहा है कि वहां पे बहुत सारी चीजें बेहतरी हुई है। लेकिन निश्चित तौर पे असेंबली डिजॉल्व जो हुई है उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट का क्या निर्णय आता है, लद्दाख और जम्मू कश्मीर एक होंगे या नहीं होंगे, इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट का कानूनी तौर पे क्या निर्णय आता है, ये तमाम सारी चीजें देखने वाली होगी। अब बिल्कुल सुप्रीम ने अभी ही निवेदन किया है, मतलब जो अपने निर्णय पढ़ते समय जो कहा है कि जम्मू कश्मीर भारत के बंधारण का ही एक भाग है। ये जो निवेदन किया गया है उसका मतलब क्या है, और साथ ही साथ ये भी जानना चाहेंगे कि अगर केंद्र सरकार से तीखे सवाल पूछे गए हैं कि आपने बंधारण सभा की अनुमति क्यों नहीं ली है, तो लगता है कि केंद्र सरकार के पक्ष में अगर निर्णय आता है तो उसके बाद बंधारण सभा की अनुमति लेनी जरूरी हो जाएगी, यानी कुछ दस्तावेज उनको पेश करने पड़ेंगे। देखिए, ये निश्चित तौर पे कुछ टेक्निकल सवाल हैं जिसको केंद्र सरकार ही जवाब दे सकती है, किस प्रक्रिया के तहत आगे बढ़ेगी, ये तमाम सारी चीजें देखने वाली होगी। लेकिन ये जरूर है कि जब राजा हरि सिंह, जब कबीलाइयों की तरफ से अटैक हुआ था और राजा हरि सिंह ने भारत के साथ एग्रीमेंट करके विलय की बात की थी, तो निश्चित तौर पे जम्मू कश्मीर की सॉवरेनिटी की बात की थी। लेकिन ये जरूर कहा था कि ये जो क्लॉज है वो अस्थायी क्लॉज है, यानी परमानेंट क्लॉज नहीं है कि यानी जम्मू कश्मीर एक अलग स्टेट के तौर पे या अलग नेशन के तौर पे भारत के साथ एलाइज के तौर पे रहेगा।
इस तरह का कोई अस्थायी क्लॉज नहीं है। यानी एक तरह से अगर संविधान सभा की अनुमति होती है तो उसको डिसॉल्व करके भारत में पूर्ण रूप से विलय किया जा सकता है, जैसा कि इसी का आधार बनाकर के केंद्र सरकार की तरफ से भी कहा गया था कि चूंकि वो अस्थायी क्लॉज है, तमाम सारे रियासतों को जिस तरह से विलय किया गया उसी तरह से जम्मू कश्मीर का भी विलय किया गया है और 2 स्टेट में उसको प्रशासनिक तौर पे शासन चलाने के लिए उसका 2 स्टेट यानी 2 केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में उसका डिवीजन किया गया है। लेकिन केंद्र सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है अपनी तरफ से और खास करके कानूनी तमाम सारे पहलुओं पे बात करते हुए कि जम्मू कश्मीर की जो विधानसभा है वो अस्थायी तौर पे डिसॉल्व की गई है, लेकिन उसको अस्थायी न माना जाए। हम कभी भी उसको बहाल कर सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ लद्दाख का जिक्र नहीं किया था। तो वो तमाम सारे कानूनी पहलू हैं। देखना यह होगा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या सारी निर्णय आते हैं और केंद्र सरकार की तरफ से बाद में उस प्रक्रिया का किस तरह से पालन होता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह साफ कह दिया गया है कि उनका निर्णय इस तरह का नहीं होगा कि जम्मू कश्मीर एक बार फिर अस्थिरता की तरफ बढ़े। जी બિલકુલ, આપ અમારી સાથ જોડે રહીએ તો અજય સતત માહિતી આપી રહ્યા છે ને હાલમાં સંવિધાન પીઠના 3 જજનો ફેસલો એક છે, કુલ 5 જજમાં 3 નિર્ણય આવ્યા છે, 3 ચુકાદા આવ્યા છે, તે હાલમાં માહિતી મળી રહી છે। સુપ્રીમ કોર્ટમાં 5 જજોની બેન્ચે પોતાના ચુકાદો વાંચવાની શરૂઆત કરી દીધી છે। કલમ 370 અંગે સુપ્રીમ કોર્ટ આજે પોતાનો ચુકાદો આપી રહી છે। આપને જણાવી દઈએ કે વર્ષ 2019માં કલમ 370 હટાવી દેવામાં આવી હતી, એટલે કે અત્યાર સુધી જમ્મુ કાશ્મીરને જે વિશેષ રાજ્યનો દરજ્જો મળ્યો હતો તેને વિશેષ રાજ્યનો દરજ્જો હટાવીને 2 કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશો જેમાં લદ્દાખ અને જમ્મુ કાશ્મીરને અલગ અલગ કરી દેવામાં આવ્યા હતા અને ત્યારથી 26 જેટલા અરજદારો દ્વારા જે છે તે સુપ્રીમ કોર્ટમાં અરજી કરવામાં આવી હતી કે સરકારે આ જે 370 કલમ હટાવી છે તે ગેરબંધારણીય છે, એટલે કે બંધારણ સભાની અનુમતિ વગર, રાજ્ય સરકારની અનુમતિ વગર તેને જે છે તેને લાગુ કરી દેવામાં આવ્યું છે, જે થોપી દેવામાં આવ્યું છે તેવી અરજીને ધ્યાનમાં રાખીને સતત 16 દિવસ સુધી તે અરજી પર સુનાવણી થઈ। ત્યારબાદ ચુકાદો અનામત રાખવામાં આવ્યો હતો અને આજ રોજ જે છે ચુકાદો વાંચવામાં આવી રહ્યો છે। હાલમાં સુપ્રીમ કોર્ટના ચુકાદાની જે મોટી વાતો સામે આવી રહી છે કે આર્ટિકલ 370 એક કાયમી વ્યવસ્થા ન હતી, એટલે કે તેને સ્થાયી નહીં પરંતુ અસ્થાયી રૂપથી જે છે તે લાગુ કરવામાં આવી હતી અને 2019 થી 2023 સુધી ઘણા બધા બદલાવ જે છે તે જમ્મુ કાશ્મીરમાં આવ્યા છે। એટલે કે પહેલા 370 કલમ લાગુ હતી જેના કારણે જમ્મુ કાશ્મીરથી બહારના વ્યક્તિ જે છે ત્યાં કોઈ સંપત્તિ ખરીદી શકતા ન હતા કે પછી ત્યાં કોઈ નોકરી મેળવી શકતા ન હતા। કેન્દ્ર સરકારે આ પહેલા સંસદમાં પણ પોતાનો એક જવાબ રજૂ કર્યો હતો કે હજારો યુવાનોને હવે જમ્મુ કાશ્મીરમાં નોકરી મળતી થઈ છે, સાથે સાથે આતંકવાદી ઘટનાઓમાં ઘટાડો થયો છે, પથ્થરબાજોનો પાસપોર્ટ પણ જરૂરી વાત કરી હતી અને સાથે સાથે મહિલાઓને પણ ક્યાંક બંધારણીય હક જે છે એ સમાનતા મળી છે, એટલે કે આ હટાવવાથી ઘણા ફાયદા થાય છે, પરંતુ અરજદારોનું કહેવું છે કે તે ગેરબંધારણીય છે। अजय हमारे साथ सतत जुड़ाला है। अजय, जिस प्रकार से इससे पहले अगर बात की जाए, अभी तो सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है वो पढ़ना शुरू है, फाइनल फैसला आना बाकी है, लेकिन उससे पहले 2019 से लेकर 2023 तक जो बदलाव जम्मू कश्मीर में आए हैं, जो लोगों के जीवन में बदलाव आए हैं, उसके बारे में पहले से ही संसद में केंद्र सरकार अपना जो जवाब है वो पेश कर चुकी है, क्योंकि उनके जीवन में काफी सारा बदलाव आया है। इसके बारे में कोई जो ये जो पढ़ा जा रहा है निर्णय, उसके बारे में उसका कोई उल्लेख किया गया है? देखिए, निश्चित तौर पे, लेकिन उससे पहले यही बताऊं कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो अहम टिप्पणी अभी की गई है उसमें सबसे महत्वपूर्ण डेवलपमेंट यही है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 370 इज ए टेम्परेरी प्रोविजन, नॉट ए परमानेंट प्रोविजन। तो एक तरह से ये स्पष्ट, जो कि केंद्र सरकार की तरफ से भी बार बार कहा जा रहा था कि 370 अस्थायी है, न कि अस्थायी है, इसको सुप्रीम कोर्ट ने अपने मुंह से खुद दोहराया है, अपनी टिप्पणी में कहा है। लेकिन साथ ही साथ ये भी कहा है कि जब जम्मू कश्मीर ने सरेंडर किया और कंप्लीटली तौर पे सरेंडर किया तो उसमें कहीं ना कहीं उसकी संप्रभुता की भी बात कही गई थी। साथ ही साथ ये भी कहा गया संप्रभुता की, यानी कि जो जम्मू कश्मीर के लोग चाहते थे या राजा हरि सिंह ने जो क्लॉज जम्मू कश्मीर की
संप्रभुता को लेकर कहे थे, उस संप्रभुता के साथ जम्मू कश्मीर ने भारत के साथ विलय किया था। ये बातें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो जजमेंट पढ़ा जा रहा है उसमें कहा गया है। लेकिन निश्चित तौर पे जो सवाल आपने उठाया, जब 16 दिनों तक लगातार सुनवाई चली थी तो केंद्र सरकार की तरफ से इस बात पे जोर देकर के कहा गया था कि जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए ही सरकार ने 370 को हटाया है, क्योंकि जब से 370 यहां पे लगी हुई है तब से वहां पे लगातार आतंकवाद चल रहा है। हजारों लोग मारे जा चुके हैं, हजारों लोग विस्थापित हुए हैं। यहां तक कि जम्मू कश्मीर के जो कश्मीरी पंडित हैं वो लगातार अस्थायी तौर पे माइग्रेट हुए हैं, उनको भी बसाने की हम कोशिश कर रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ 370 हटने के बाद यानी 4 सालों के बाद जम्मू कश्मीर में किस तरह की स्थिति बनी है उसको भी बाकायदा तौर पे केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा था, जिसमें यह कहा था कि एक लंबा अरसा हो चुका है कि 1990 के बाद से ही वहां पर जो सिनेमा हॉल थे वो पूरी तौर पे बंद हो चुके थे, और एक भी शख्स को अगर फिल्म देखनी होती थी तो जब भी वो दूसरे स्टेट जाता था तो फिल्में देखता था, लेकिन वहां पर हॉल का संचालन नहीं होता था सिनेमा हॉल का। तो सिनेमा हॉल का संचालन किया गया है, युवाओं को रोजगार दिया गया है, कई सारे लोगों ने वहां की संपत्तियों पे अस्थायी तौर पे कब्जा कर लिया था इलीगल तौर पे, उसको हटाया गया है। वहां की बेहतरी के लिए तमाम सारे उपाय किए गए हैं। यहां तक कि जो लोकल गांव ग्रामीण में रहने वाले लोग हैं जो कि सरकारी योजनाओं से वंचित रहते थे, उनको भी सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाया गया। साथ ही साथ केंद्र सरकार ने इस बात का भी जिक्र किया कि किस तरह से तमाम सारे जो भारत के स्टेट हैं तमाम सारे पंचायती राज का लाभ लेते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर एक ऐसा स्टेट है जहां पर शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट को उस तरह की सहूलियतें नहीं मिलती हैं जो कि दूसरे स्टेट में मिलती हैं। तो हम इस तरह का प्रावधान लेके आए हैं कि ताकि वहां के जो ट्राइब्स हैं या दूसरी जो माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग हैं उनको जिस तरह का लाभ मिलना चाहिए उस लाभ को भी वो ले सकें। इस तरह के प्रावधान तमाम सारे किए गए हैं और उसका असर भी दिखना शुरू हो गया है। जम्मू कश्मीर में जब से 370 हटी हुई है तब से पत्थरबाजी की घटनाएं न के बराबर हो गई हैं, और सिक्योरिटी फोर्सेस जो भी टेररिस्ट अपना सर उठा रहा है उसको तुरंत क्रश करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आम जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं शांति से रह सकें। तो अपनी काफी स्ट्रांग जो दलील है केंद्र सरकार की तरफ से कि 370 हटाने के बाद किस तरह से हालात वहां पे बदले हैं, इसको रखा है। तो निश्चित तौर पे सेंट्रल जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जजमेंट सुनाया जा रहा है उसमें पहली टिप्पणी भी जज की तरफ से यही की गई, या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तरफ से यही की गई कि हम इस तरह का कोई जजमेंट नहीं देने जा रहे हैं जिससे जम्मू कश्मीर एक बार फिर अस्थिरता की तरफ बढ़े। और साथ ही साथ दूसरा जो महत्वपूर्ण स्टेटमेंट या टिप्पणी कह सकते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तरफ से कहा गया कि 370 जो है वो अस्थायी नहीं है बल्कि अस्थायी था, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी जो 16 दिन तक दलील दी थी उसमें भी इसी बात को जिक्र किया था कि ये एक तरह से अस्थायी था और भारत के साथ जब विलय किया गया तमाम सारी रियासतें जिस तरह से बिल्कुल जो अजय जानकारी अभी प्राप्त हो रही है 5 अगस्त 2019 को जो केंद्र सरकार ने लागू किया था वो यथावत किया जाएगा, यानी जम्मू काश्मीરમાં હવે 370ની કલમ જે હટાવવામાં આવી હતી તે લાગુ જ રહેશે। જમ્મુ કાશ્મીર પર કેન્દ્રનો નિર્ણય સુપ્રીમે અહીંયા યથાવત રાખ્યો છે। સુપ્રીમે ઘણી બધી વાતો કહી છે કે કેન્દ્ર સરકારે જે 16 દિવસથી દલીલો કરી હતી તેમાં જીવનમાં બદલાવ સાથે આ કલમ અસ્થાયી રૂપથી લાગુ કરવામાં આવી છે કે ન તો સ્થાયી રૂપથી। સતત અજય અમારી સાથે જોડાયેલા છે। અજય, કેન્દ્ર सरकार के पक्ष में ही निर्णय आया है, क्या जानकारी मिल रही है, फाइनल जो फैसला आया है? देखिए, निश्चित तौर पे सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा है कि हम यहाँ इसलिए नहीं बैठे हैं कि जो वहां पे प्रेसिडेंट रूल लगाया गया है 370 को जो हटाया गया है उसको हम पूरी तौर पे खारिज कर दें, बल्कि हम वहां की स्थिरता चाहते हैं, वहां पे शांति बहाली चाहते हैं और किसी तरह का कोई कयास नहीं चाहते हैं। जबकि जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तरफ से जब शुरुआत में जब जजमेंट पढ़ा जाना शुरू हुआ था तभी उन्होंने जब इंफॉर्मेशन दी थी कि 3 तरह के जजमेंट आए हैं, लेकिन जो मेजॉरिटी का जजमेंट है उसी को हम यहाँ पे पहले पढ़ने जा रहे हैं। और उसी के हिसाब से पहले ही संभावना ये थी कि जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये भी कहा गया कि जो 370 कलम है वो एक तरह से अस्थायी थी, अस्थायी नहीं थी, तभी ये लग गया था कि केंद्र सरकार ने जो 370 को हटाने का फैसला लिया है उसमें किसी भी तरह की सुप्रीम कोर्ट छेड़छाड़ नहीं करना चाहता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया था कि हम किसी भी तौर पे वहां पे अस्थिरता एक बार नहीं चाहते हैं। जो प्रेसिडेंट रूल लगाया गया है हमको उसको पूरी तौर पे खारिज नहीं करना चाहते हैं, बल्कि सरकार जिन स्थितियों को वहां पे फेस कर रही है वो उसको बेहतर जानती है। लेकिन अब देखना ये होगा कि आगे कि जो जैसा पहला आपने सवाल किया था कि लद्दाख और जम्मू कश्मीर क्या फिर एक हो सकता है या जम्मू कश्मीर की अलग से असेंबली बहाल हो सकती है, जैसा कि खुद केंद्र सरकार ने कहा है कि हम जम्मू कश्मीर की असेंबली बहाल करने की दिशा में काफी कुछ काम कर चुके हैं। वहां पे जो
डिलिमिटेशन का जो काम है उसको हम पूरा कर चुके हैं। विधानसभा चुनाव कराने की स्थिति में है तो हम कभी भी विधानसभा चुनाव भी करा सकते हैं। तो एक तरह से अभी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो जजमेंट पढ़ा गया है उसमें एक बात स्पष्ट कर दी गई है कि केंद्र सरकार ने जो 370 को या 35A को हटाने का जो फैसला लिया था उससे कहीं न कहीं सुप्रीम कोर्ट सहमत दिखाई दे रहा है। बाकी के 2 जजमेंट कैसे हैं वो देखने वाली बात होगी, और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर की असेंबली जो डिसॉल्व हुई है उसको कब तक बहाल करने के बारे में या बहाल करने के बारे में कुछ सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ सकता है। ये तमाम सारी चीजें देखने वाली होगी क्योंकि डिटेल में सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। બિલકુલ ધન્યવાદ તમામ જાણકારીઓ કે लिए। તો સુપ્રીમ કોર્ટે જે નોંધ્યું છે કે 370 કલમ હટાવવાનો જે નિર્ણય હતો કેન્દ્ર સરકારનો તે સાચો હતો, જેના કારણે જીવનમાં ઘણા બદલાવ જમ્મુ કાશ્મીરના લોકોમાં આવ્યા છે।